हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम करेंगे मेडिवल्स वर्ल्ड यानी मध्यकालीन विश्व, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो 9th में पढ़ते हो, चाहे 10th में हो, सीबीएसई के हो, चाहे नेशनल बोर्ड के हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो। सभी बोर्ड के बच्चों के लिए जो है मेडिवल्स वर्ल्ड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, यानी मध्यकालीन भारत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्व रखेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी हैव डिस्कशन मोस्ट important chapter here, medieval world. There is a most important chapter here, medieval world. The first point, arrive here, Europe in a medieval time. There is Europe in a medieval time. There is a most important topic here. The middle period is also called to the middle age. There is a middle period is also called middle age. As the name suggests, it is a refer to the period which succeeds the ascent period and come before the middle period, but was it is only a middle age is a cup in between two great ages with no significance of it. It's over. Not real in the medieval period, considered the unimportant state is the evolution of human society. That need to be a study for its own interest here. What is more, the achievement and galleries of medieval period were also important step toward to the modern period. There is the most important on this period time here. You may be find interesting to be now that is a term Middle Age was coined by the European in the 7th century, because they say it is as on the long and the dark period of the interruptions between to the classical period of ancient Greek and Roman civilization and their urban middle age here. However, the medieval period was not necessarily of a dark period or the interruptions here. For the Islamic world, it was a period when a civilization flowered and reached there is a height of its gallery. Its India's middle period was on edge of synthesis. Synthesis is important. It says a fusion of the old and new political, economical, and social system here. Out of this fusion emerged a unique culture pattern of coexistence and the acceptance that is because they are hallmark of the medieval period of India. Even in Europe, the picture does not be appear as gloomy as it is sometime thought. It is an earlier part of medieval period, their level of material and cultural accomplishment and was not a doubt somewhat low. That is important. However, during the later part of the Europeans greatly is improved their standard of living, and they also developed a new institution of learning and new mode of thought. There is reached very high stand in the literatures and art. In fact, the new idea that emerged during this time not only transformed European but also had a deep impact on the rest of the world in their time to come. Let us then to find out what was
happening in the different part of the world due to various Asia. The next point here, decline of the Roman Empire. Decline of Roman Empire here. We have read in the preview lesson about the strength and greatness of Roman civilization. But we also read how the Roman Empire had come to be divided into the western and eastern territories. The western province as had there is a capital in Rome, while the eastern province had there is a capital in a Constantinople. The Roman Empire is a Constantine had a set of the new capital of the eastern territory in their ancient Greek city of the Byzantine in the 330 AD. It's come to now as a Constantinople after his name. The Roman Empire is continued to be exist in their east for almost 1,000 years after it had collapsed it in their best. There is a collapse in the best. That is important. It was now as the Eastern Roman or the Byzantines as Europe. The Eastern civilization of Greek-speaking people reached a very high standard of economic and cultural life at a time when the Western Europe was in the relatively a backward condition. The Roman Empire in the West come to an end following attack by the various Germanic tribes like their Goth, Vandal and Visigoths and Franks after the overthrowing of Roman Empire in the West in 476 AD. This is an order established separately a successor state. Did all the political upheavals is a result in a completely change? Did the political and economical system built by the Roman disappear? Well, the new Germanic rules did not be completely or replace their earlier system with their own. In fact, Roman and Germanic societies come into the close contact and emerge with each other. As a result of this and the prevalent political and economical condition, a new type of society was born in Europe with a institution and system that were quite different from either Roman or Germanic one. The most important institution of the new society was feudalism. It's a completely transformed to exciting to the social, political and economical organization here. Let us see how this system is involved and that is the characteristics where. हमारा जो यहाँ पर चैप्टर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण मध्यकालीन विश्व। आखिर मध्यकाल में विश्व की क्या परिस्थिति थी और किस प्रकार जो है मध्यकालीन में विश्व का जो क्या मतलब कंडीशन था, तो इसमें बहुत सी बातें हम जो यहाँ पर करेंगे और इसके जो है हर एक जो है बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ बात आता है मध्यकालीन विश्व के अंतर्गत मध्य युग में यूरोप। मध्य युग में आखिर यूरोप की कंडीशन कैसी थी, कैसी इसकी रहन सहन थी, कैसे इसकी व्यवस्था थी, तो इसी पर हम आप प्रकाश डालने जा रहे हैं। देखा जाए तो मध्यकाल के जो है मध्य युग भी कहते हैं, यानी मध्यकाल को हम फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य युग भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से ही जाहिर है यह वह काल है जो प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले आता है। यानी प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले यानी बीच का ये काल है, इसलिए इसको मध्य युग यूरोपियन कहा जाता है। लेकिन क्या यह उन सदियों का उचित चित्रण भी है? तो क्या ये चित्रण प्रस्तुत कर पाते हैं? क्या यह महज दो महान युगों के बीच फंसा एक मध्य युग है जिसकी अपनी कोई विशेषता नहीं है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ उठ रहा है। क्या इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है? देखिए कहते हैं कोई भी युग हो, चाहे पुरातन युग हो चाहे मॉडर्न युग हो, और मध्य युग की बात करें तो कहते हैं हर युग अपने आप में एक समूचा एहसास कराता है। ठीक है, कहते हैं अगर देखा जाए इस बात पर अगर हम एनालाइज करें तो सचमुच ऐसा नहीं है। मध्यकाल मानव जो है समाज के क्रम विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसका मध्यन उसकी अपनी विशेषता के लिए जाना जाना चाहिए। कहते हैं हर काल जो है अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सिर्फ यही बात नहीं है,
मध्यकालीन की जो है उपलब्धियाँ या गौरव आधुनिक काल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। देखिए, जो मध्यकाल में हुआ होगा वही उसका प्रभाव जो है आधुनिक युग में भी पड़ा होगा। जनरल सी बात है, जो कार्य आप आज करोगे, आज जैसा मेहनत करोगे, आपका आने वाला में जो आप अगर पेपर दोगे तो फल भी आपका उसी प्रकार से प्राप्त होगा। आप सोचिएगा कि यहाँ पर मैं मेहनत करूँ नहीं या मेरा फल अच्छा मिले, तो ये संभव नहीं रह जाता है। तो मध्य में जो कार्य किया जाता है उसका फल और उसका जो है प्रभाव फ्यूचर में दिखता है, यानी आने वाला समय में दिखता है। तो मध्यकालीन को हम यहाँ नकार नहीं सकते हैं। जो मध्यकाल में हुआ वो मॉडल आधुनिक युग में देखने को जरूर मिला होगा। एक मायने में आधुनिकता की जड़ मध्यकालीन में ही हुआ है। देखिए, ये बात यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि कोई भी जो जड़ होती है, अगर हम बात करें आधुनिकता की तरफ जाएं तो जो मध्यकाल में जो व्यतीत हुआ होगा जड़ तो वहीं से बना होगा ना। अगर जड़ कहते हैं पीछे अगर कमज़ोर हो तो आगे जो आगे पौधा बढ़ता है तो वो भी कमज़ोर होता है। मान लीजिए अगर स्टार्टिंग से आपने बच्चों को शिक्षा सही नहीं दिया तो क्या बाद में वो बेटर कर सकता है? संभव ही नहीं है। जब जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो पेड़ खड़ा कैसे रह सकता है? तो ज्ञान का पेड़ कैसे खड़ा रह सकता है? तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है कि जब मध्यकालीन ही के जड़ मजबूत नहीं होंगे तो कहते हैं आधुनिक की जड़ किस प्रकार मजबूत हो सकते हैं। आपको ये बात जो है दिलचस्प लगेगी कि मध्य युग का शब्द जो है यूरोपियों ने जो 17वीं सदी में गढ़ा, क्योंकि उन्होंने इसे प्राचीन यूनानी और रोमन कालिस्की के काल और उसमें जो है अपने आधुनिक काल के बीच के संकट को एक लंबे और अंधकारमय काल के रूप में देखा। तो ये बात आपके लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि मध्य युगम को जो है यूरोपियन वासियों ने जो है 17वीं शताब्दी में गढ़ा था, लेकिन मध्यकाल पूरे दुनिया के लिए अनिवार्य कोई संकट या अंधकारमय काल नहीं था। हर क्षेत्र में जो है इसकी विशेषता और इसके प्रकाश देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। बात यहाँ आगे हम करें तो कहते हैं इस्लामी जगत के लिए यह एक ऐसा काल था जब एक सभ्यता का जन्म हुआ और वह जो है परवान भी चढ़ा और उसकी जो है बुलंदियों पर भी पहुंचा। देखिए, एक सभ्यता जो था वो परवान भी चढ़ा, बुलंदियों पर भी पहुंचा। भारत में मध्यकाल में मेल जोल और संश्लेषण का युग था। पुरानी और नई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं आपस में जो है घुलने मिलने और जो है संश्लेषण की इस प्रक्रिया में सह अस्तित्व और सहभूषणता का एक अनूठा संस्कृति रुझान उभरा और मध्यकालीन भारत की पहचान बन गया। यूरोप में भी जो है तस्वीर इतनी सहन नहीं थी जितना कभी कभी समझा जाता था। बेशक वहाँ जो है मध्यकाल के शुरुआत में भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन बाद में यूरोपवासियों ने अपने जीवन स्तर में काफ़ी सुधार किया और ये सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। उन्होंने ज्ञान विज्ञान की नई संस्थाएं और चिंतन की नई प्रणाली विकसित की, जो कि उस समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और वो साहित्यिक एवं काल में बहुत उन्नत स्तर पर पहुँचे। दरअसल इस बात पे अगर हम देखें तो उस समय जो नए विचार उभर कर आए उन्होंने न सिर्फ यूरोप को रूपांतरित किया बल्कि बाद में शेष दुनिया को भी काफ़ी प्रभावित किया। कहते हैं अगर एक देश प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश पे भी पड़ेगा। इसमें जर्नल सी बात है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस का प्रभाव वुहान के शहरों में हुई, लेकिन इसका प्रभाव देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है देखना भी पड़ा और इसको जो है सहन भी करना पड़ा। तो कहते हैं अगर एक राज्य में, एक देश में कुछ गलती होती है तो उसका प्रभाव हर एक देश, हर एक राज्य में भी वो देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपको अभी लग रहा होगा जैसे यूक्रेन के भी युद्ध चल रहे हैं तो इसका प्रभाव ये नहीं सोचिएगा सिर्फ वहीं पे पड़ेगा। कहते हैं इसका वातावरण पे तो प्रभाव हो ही रहा है, जो पूरे विश्व को आने वाला समय में जो है तराही करने के लिए पर्याप्त रहेगा। कहते हैं वहाँ के जो लोग हैं न समझ रहे हैं न सोच रहे हैं और पूरे विश्व को जो है तहस नहस करने में लगे हुए हैं। तो इसका प्रभाव सिर्फ उन देशों पे नहीं देखने को मिलेगा, हर एक देश पे जो है प्रभाव बखूबी देखने को मिल जाएगा। आइए मध्यकाल के नाम से जाने जाने वाले इस काल में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हुए रोचक परिवर्तनों के बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमने पिछले पाठ में रोमन साम्राज्य की ताकत और महानता के बारे में पढ़ा है। अगर आपने जो है इसका पहला टॉपिक नहीं देखा है पीछे वाला तो देख लेना। उसमें हमने जो है रोमन साम्राज्य के विषय में जो है प्रकाश डाला था और उसमें हर बात समझने की कोशिश किया था। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए वीडियो, जो पुराना है।
ठीक है। इसमें के बीच में रोमन साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बंट चुका था। ये काफ़ी ज़रूरी है कि रोमन साम्राज्य जो था पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बटा था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। पश्चिमी प्रांतों में राजधानी रोम था, जबकि जो है कुस्तुनिया जो है पूर्वी प्रांतों की राजधानी बनी। यानी कुस्तुनतुनिया जो थी जो है पूर्वी प्रांतों की राजधानी बन बैठी। और रोमन सम्राट कास्टोस्टाइन ने जो है 330 ईस्वी में जो है बैजेंतिया के पुराने यूनानी शहर में पूर्वी क्षेत्र की नई राजधानी स्थापित करने में सफल हो गया। नई राजधानी उसके नाम पर जो है कुस्तुनतुनिया के रूप में जानी गई। यानी आगे चल के जो है कुस्तुनतुनिया के नाम से जानी गई पूरे विश्व में। और पश्चिमी हिस्सों में साम्राज्य के पतन के करीब 1000 साल बाद के पूर्वी हिस्सों में रोमन साम्राज्य टिका रहा। कहते हैं 1000 साल तक रोमन साम्राज्य को टिका रहना काफ़ी महत्वता की ओर इशारा करता है। और यह पूर्वी रोमन साम्राज्य और जो है बेज़ंतातिया साम्राज्य के नाम से भी जाना गया। तो ये काफ़ी महत्व रखता है कि जो ये देखिए कि रोम साम्राज्य या इसको हमने जो है बेज़ंतिया के नाम से भी जाना गया। और ऐसे समय में जब पश्चिमी यूरोप अपेक्षाकृत बिछड़ी हुई थी स्थिति में था। यानी उस समय जो है पश्चिमी यूरोपिया बिल्कुल ही पिछड़ी हुई स्थिति में थी। और यूनानी भाषी लोगों के जो है पूर्वी सभ्यता, आर्थिक, संस्कृति, जीवन में बहुत बुलंदी पर पहुंच गई थी। गात और मंडल जो है विशागात, आड़ और फ्रैंकरिच जैसे विभिन्न जर्मनिक कबीलों के जो है हमले के बाद पश्चिमी में रोमन साम्राज्य ढह सा गया था। और 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का जो है तख्ता पलटकर इस जो है हमलावरों ने अपने अलग अलग उत्तरवर्ती यानी संश्लेषण राज्य स्थापित कर लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें तो यही प्रश्न सबसे पहले उठता है, क्या इन तमाम राजनीतिक उथल से जटिल परिवर्तन आए? कहते हैं जो ये उथल पुथल हुई, क्या इसमें राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला? क्या रोमनों ने जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाई थी वो पूरी तरह से लुप्त हो गई थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसमें हम देखें तो नई जर्मनी शासक पुरानी जो है व्यवस्थाओं की जगह अपनी जो है व्यवस्थाएं नहीं लाए। दरअसल इसमें एक बात थी कि रोमन और जर्मनिक समाज एक दूसरे के संपर्क में आए और एक दूसरे में जो है घुल मिल सी गए। कहते हैं जब दो संस्कृति आते हैं आमने सामने तो वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और कई संस्कृतियां जो है एक दूसरे के अपना भी लेते हैं। तो ये आम बात थी। और इसके और उस समय की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के कारण जो यूरोप एक नई किस्म के समाज को जन्म हुआ। कहते हैं अगर दो संस्कृति आपस में मिलती है तो एक नई समाज का जो है जन्म होता है। और इस समाज की संस्थाएं और व्यवस्थाएं रोमन जर्मनिक दोनों से काफ़ी भिन्न थी। और इस समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो थी संतनवाद थी। समानतावाद की जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठनों की पूरी तरह बदल दिए थे। आइए देखें कैसे पद्धति विकसित हुई, इनकी विशेषता क्या थी। तो उसको जो है हम सारे विषय में जो है अगले टॉपिक में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा समानतावाद, राजनीतिक और सैन्य और सामाजिक आर्थिक पहलू किस प्रकार की थी, तो उसके विषय में हम अगले टॉपिक में विचार करेंगे। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। यहाँ तक अगर बात आपको समझ आ गई होगी यूरोप के बारे में, अगर आपको अच्छा लगा मन से, अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को जो है जितना हो सके शेयर करना है। और शेयर करने के यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। देखिए आपने अपना कार्य कीजिए। कहते हैं इंसान को अपना कार्य बखूबी करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कार्य किया कि नहीं किया इस बात को कभी भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं अपना कार्य सदैव करता ही रहता हूँ, तो आपका भी कार्य जितना हो सके त्रिपान स्टडी सेंटर का मदद करना है। और मदद करने के लिए आपको पता ही है, कहते हैं जो समझदार होते हैं उनका इशारा ही काफ़ी होता है, उनको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और त्रिपान स्टडी सेंटर के जो है लुत्फ़ उठाइए। देखिए त्रिपान सेंटर सिर्फ एक क्लास के बच्चों के लिए अग्रसर नहीं है। यहाँ पर जो है 8 से लेकर जो है MA तक के बच्चों के लिए हर कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पे इसके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो देखेंगे। चाहे आप सिलेबस के अंतर्गत देखो, टॉपिक के अंतर्गत देखो या क्लास के अंतर्गत देखो, सभी का प्रावधान किया गया है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर कुछ विचार रखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ जो है अपना विचार हम मेरे साथ साझा करना चाहते हो तो इसके लिए आप कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट आप कर सकते हो।